बूंद विहूणा चात्र को क्यों कर तृप्तावे। नाद कुरंकै बेधया सन्मुख उड़धावे। भवर लोभी कुसुमबास का मिलिया बंधावे। त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अघाव जिस पारे स्यों नेह। तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पछे जीवना। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालिक। हाजरा हजूर ज़ारा सहूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 10 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਵਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਖਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੈ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ।
किसी नूं डर देना भी जुल्म है और किसी का डर सहारना भी जुल्म है। ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह मनुखी अधिकारां लई किसी के धर्म की रखिया लई पातशाह अज दिल्ली चांदनी चौक दे विच शहादत का जाम पीन लगे ने। जलालुद्दीन जो जलाद है, और मैं कल भी अर्ज की है, ये समाणे का रहन वाला है। जलालुद्दीन इसे दे पोतरे ने जिन्हां दा नाम शाशल बेग और बाशल बेग है, जिन्हां ने कलगीधर पातशाह महाराज के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को के शहीद किया सी। ये जलालुद्दीन के पोतरे ने। और इधर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के पोतरे ने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों हमला किया सी, उस वेले सब तो पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाणे नूं उन्होंने कीते हुए कर्मां की सजा दी सी। समाणे नूं जित्तिया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। जलालुद्दीन एक पासे बैठ के तलवार जिहड़ी है वो तेज करता है, ते नाल ही अपने मुख तो कह लगा, गुरु जी असी खनदानी हाँ, मेरा काम भी खनदानी है, ते जदों मेरी तलवार चलेगी तो मेरी तलवार जड़ी है वो चुकेगी नहीं, क्योंकि साडा खनदानी काम है। काजी किथे पिछे रहन वाला सी। काजी कह लगा, जे जलाद खनदानी है, असी काजी भी खनदानी हाँ, साडे बुजुर्ग भी खनदान के लोग यही काजी दे फतवे पढ़ते रहे ने। ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज मुस्कुरा के आखन लगे, रब ने कैसा संजोग बनाया है, जे जलाद खनदानी है, जे काजी खनदानी है, तो असी भी खनदानी हाँ, कि क्यों मेरे दादा धन गुरु अर्जुन देव महाराज उन्होंने भी लाहौर के अंदर शहादत प्राप्त की है। वो गल वखरी है कि उन्होंने लाहौर अंदर शहादत प्राप्त की है कि दिल्ली की धरती है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के उपर जो कोई हिला उन्होंने नहीं चलिया, जलाद नूं यह हुक्म होया कि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सीस जिहड़ा है वो धड़ दे नालों वखरा कर दिता जाए। ते दोपहर वेले का वेला है। सारे इतिहासकारां ने यह गल लिखी है कि उस वेले एक बहुत भारी झक्खड़ तूफान जिहड़ा है उस रूप दे आया। दूसरे पासे धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के सीस के उपर कटार चली, तलवार चली, ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सीस धड़ नालों वखरा हो गया। आंधी झक्खड़ झूलिया, ते ये पहले ही सारी विਉਂਤਬੰਦੀ की हुई सी कि भाई जैता जी, जिन्हां दा नाम भाई जीवन सिंह है, भाई जैता जी ने, क्योंकि उत्थे कई सैकड़ियां दे विच लोकी उत्थे खड़े ने तमाशबीन बन के, ते भाई जैता जी ने उस तूफान नूं देखदियां होइयां फटाफट धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का जो सीस है वो चुकिया, एक कपड़े दे विच लपेटिया, ते भाई जैता जी उतों ते निकल गए। हुण एक गल याद रखना कि सैकड़े लोग उत्थे मौजूद होण, काजी भी उत्थे मौजूद है, जलाद भी उत्थे मौजूद है, ते उस मौके नूं ताड़दियां होइयां जो पहले ही विਉਂਤਬੰਦੀ की हुई सी, भाई जैता जी ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के सीस की संभाल की। दूसरे पासे असीं गल करते हाँ भाई लखी शाह वणजारा, वो बहुत बड़े व्यापारी ने, वणजारे ने, ते व्यापार करने लई उन्हां दा रूह का व्यापार है, वो रूह का व्यापार करते हैं। उन्हां दे गड्डे उत्थों लंघे उस समय अंदर, ते भाई लखी शाह जी ने, देखो दो शाह आए ने, एक मक्खण शाह लुबाणा जिहड़ा है, जिन्हां ने धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं प्रगट कीता सी, ये लखी शाह है। लखी शाह ने धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के धड़ दा संभाल की, अपने रूहां दे गड्डियां दे उपर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के पावन धन नूं रखिया, ते लखी शाह अपने घर वल लैके चले गए। हुण लोकां दे अंदर एक भाजड़ पै गई कि गुरु पातशाह का सीस किधर गया, धड़ किधर गया।
जे लखी शाह किधरे होर संस्कार करते ने तो लोगों दी नज़रां दे आ जाते हैं। इस लखी शाह वणजारे ने जिथे अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है उत्थे बहुत बड़ा उन्होंने बंगला है उन्होंने, क्योंकि वणजारे ने सोहना काम है उन्होंने, सोहना कारोबार है लखी शाह वणजारे का। तो अपने घर दे च रख के जिथे कीमती समान है उन्होंने अपना धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के पावन धन रख के अरदासा सोधिया दाता कृपा करी महाराज, ये सब कुछ दिता हुआ तेरा ही है, ये भावें घर है भावें कारोबार है दाता तेरा ही दिता हुआ है। अरदास प्रवान करना कि मैं आप जी के पावन धड़ का अज संस्कार कर लगा हाँ, ते अपने घर के अंदर ही लखी शाह वणजारे ने गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के धड़ का संस्कार किया। सारा घर सड़ गया पर भाई लखी शाह वणजारा इस गल का कोई मन अंदर कोई गिला नहीं है कि मेरा घर सड़िया, सगों शुक्र करता है कि सतगुरु पातशाह ये सारा कुछ दिता हुआ तेरा है, तेरी रहमत नाल मिलिया हुआ है कि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह धड़ का संस्कार लखी शाह वणजारे के घर जिथे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उत्थे हुंदा है। दूसरे पासे भाई जेता जी जिन्हां ने अमृत पान करके बाद विच उन्हां दा नाम भाई जीवन सिंह जी हो गया सी। भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सीस अपने कपड़े अंदर किसी अंदर लुकाउंदे ने। कई विद्वानां ने लिखिया कि उन्होंने अपने कपड़े नूं हिक दे नाल सीने नाल ला के रखे आ कि आखते ने कि टोकरी दे विच महाराज दे पावन सीस नूं रख के सिर दे उपर लैके तुरे। उस वेले जाण दा कोई प्रबंध नहीं है ते जैता जी ने पैदल ही दिल्ली तो लैके वो पहला जड़ा सफर किया, क्योंकि 5 दिनों का सफर है। 6वें दिन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का संस्कार होंदा है 16 नवंबर नूं, ते एक 11 नवंबर की घटना है जदों तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज का धड़ दे नालों सीस जुदा होंदा है। 11 तरीक की यह घटना जैता जी सवेरे तो तुरे ने, इंज कह लवां कि उस वेले जो सीस धड़ नालों वखरा होया तकरीबन दोपहर तो तुरे ते दौड़दियां दौड़दियां यूपी के इलाके दे जिहदे बागपत नाम इतिहासकार लिखिया है, बागपत पहुंचे जिथे हजरत बहाउद्दीन उन्होंने मिलते ने। सारी विरथा उन्होंने दसी ते उन्होंने कृष्णपाल नाम का एक हिंदू परिवार है, उन्होंने घर जाके बाबा जैता जी भाई जीवन जी वो रुकते ने। सारा परिवार धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के चरणों के नतमस्तक होता है। 11 नवंबर की रात को गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह और भाई जैता जी उन्होंने घर रुकते हैं। 12 नवंबर सवेरे भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सीस लैके तुरे ने बागपत तो यूपी तो। चलदियां चलदियां अज सवेरे तो तुरे ने। पहला जड़ा सफर किया तकरीबन 40 मील का सफर बाबा जैता जी ने किया है। दूसरे दिन जो तुरे ने ते शाम वेले का वेला हो गया ते शाम जिस घर दे पहुंचते ने संध्या वेले का वेला है ते एक धोबी है। धोबी का नाम इतिहासकारां ने देवा राम जी लिखिया है। देवा राम जी सवेरे कपड़े धो के जो वापस लैके आ रहे ने ते झाड़ियां दे चों कुछ आवाज आई, क्योंकि पैदल रास्ता भाई जीवन जी ने जैता जी ने तय किया। यह भी डर है क्योंकि हुकूमत जड़ी है वो सूह लैन लई पिछे आ रही होए और जंगली रस्ता जड़ा है उन्होंने वो तय किया। जंगली रस्ते अंदर उस वेले जानवर भी होणगे, उन्होंने सारिया को बचादिया होया पैरों के अंदर कंडे भी लगते होणगे, झाड़ियां भी लगदियां होणगियां, शरीर जड़ा है वो छरनी हो गया। पर जैता जी ने इस गल की परवाह ना की। शाम वेले जो पहुंचते ने ते जड़ा धोबी है उसने झाड़ियां दे चों आवाज़ सुनी ते आखन लगा कौन है, रात्रि वेले का वेला। जैता जी ने आख्या मैं गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सिख हाँ। ते वो धोबी बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल कहन लगा जे गुरु पातशाह का सिख है
ਤੇ ਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ कपड़े दे लपेट के अपनी हिक दे नाल लाया हुआ है ते पूछया कोई कीमती समान है? कहने लगा इतना कीमती है कि एक पल भी दा विसार नहीं किया जा सकता। वो धोबी देवा राम जी लैके गए, कह के तुहाडे समान नूं कोई खतरा नहीं, एक पासे रख के तुसी बड़े दूरों आए जापदे हो, जो भी सेवा है साड़ी प्रवान करो, जल प्रसाद जो तुसी छकना है वो छक लो, पर नाल रखिया हुआ तुहाडे कोल की है? इतिहासकार कहते कि एक अध रोटी उन्होंने खाधी। उस तो बाद देवा राम दे मुख तो यह सहज सुभाए निकले, आखन लगे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्होंने मिक चादर बनाई है, चादर तैयार की है, तो मेरी भावना है तुसी जा रहे हो, मेरी गरीब की यह भेटा जड़ी है गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के घर तक पहुँचा दिओ। भाई जैता जी दे अखां दे विचों हंझू जड़े ने वो वग तुरे, अपने आप ना संभाल सके ते आखन लगे जिस गुरु नूं तुसी चादर भेटा करनी चाहते हो ना, वो गुरु तुहाडे घर ही ने। वो धोबी देवा राम सोचन लगा कि गुरु पातशाह मेरे घर में। फिर वो चादर की परत बाई परत हटाई ते की देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का पावन सीस जिहड़ा है उस टोकरी विच रखिया हुआ है। देवा राम भोबा मार के रो लग पिया, उहदे अथरू ना बंद होण, हौसला दिता फिर ते वो जो चादर भेटा करनी चाहता सी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं, उसे चादर दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दे सीस नूं फिर लपेटिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि सारी रात देवा राम जी कपड़े दे नाल चोर बना के सारी रात वो चोर की सेवा करते रहे ने। ये 12 की रात है। 13 नवंबर की सवेर हुई। भाई जैता जी हुण तुरे ने तरावड़ी तो, तरावड़ी पिंड है, तरावड़ी तो तुरे ने सवेरे तो लैके शाम तक अंबाले की धरती पर पहुंचते ने। अंबाले धरती पर जिस हिंदू परिवार के गृह विखे रुकते ने रात, उन्हों का नाम रामदेव जी है। ये रामदेव जी के मन अंदर भी गुरु पातशाह के दर्शनों की चाह है, तो कहते हैं कि गुरु पातशाह ने भी दर्शन करने ने। बड़ा लंबेरा इतिहास है। तो धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज और भाई जैता जी तीसरी रात, इंज कह लवा 13 नवंबर की रात रामदेव अंबाले की धरती पर रुकते हैं। 14 नवंबर की रात, 14 नवंबर सवेरे भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर पातशाह का सीस लैके अंबाले तो तुरते ने ते नाभे की धरती पर राती पहुंचते ने। उत्थे दरगाही नाम का एक पीर है, उहदी झोपड़ी दे कोल कुछ हिलण की आवाज़ आई। वो पुछदा है कौन है? भाई जैता जी आखदे ने मैं गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सिख हाँ। आखन लगे फिर किस करके तुसीं झाड़ियां अंदर छुपे हो, जो भी तुसीं हो इत्थे आके इत्थे विराजमान हो, तुहानूं किसी कोलों डरन की लोड़ नहीं। दरगाही पीर दे कोल अज रात रुकदे ने। दरगाही नाम के पीर ने गल की, जैता जी नूं आखन लगे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के दर्शनां की तांग है मेरे मन अंदर, ते जे गुरु पातशाह तुहानूं मिलन ते मेरी ये बेनती पातशाह के चरणों च करना कि दरगाही पीर तुहाडे चरणों दे च अरदास कर रहा है कि अपने दर्शन दिओ। मैं गल नेड़े रखा। भाई जैता जी ने जो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के सीस के दर्शन कराए, वो दरगाही पीर जिहड़ा है सतगुरु के चरणों के नतमस्तक होया। कदे सारी रात गुरु पातशाह के केसां नूं सवारदा है, कदे लगे हुए खून नूं साफ करता है। वो दरगाही पीर, ये नाभे की धरती की गल है। 14 नवंबर की रात है। सवेर जदों तुरन लगे तो दरगाही पीर ने गल कही, आखन लगा जैता जी मेरी ये बेनती गोबिंद राय भाव के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं करना
कि दरगाही पीर आपके दर्शनां लई तांग दे विच है, ते जदों तक तुसीं दर्शन नहीं दिओगे मैं प्राण नहीं त्यागणे। मैं प्राण उस वेले त्यागांगा गोबिंद राय नूं आप जे दर्शन हो जाणगे। ते इतिहास ही अगे जाके जिक्र है कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने दरगाही पीर नूं दर्शन दिते सन। खैर 15 नवंबर की सवेर नूं भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सीस लैके नाभे तो तुरे। हुण सामने कीरतपुर नज़र आ रहा है, ते कीरतपुर की वो धरती है जिथे धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह उन्होंने अपना अखीर श्वास त्यागे। धन गुरु हर राय सच्चे पातशाह ने प्राण त्यागे ने। ज्योति जो समाए पातशाह ते भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का पावन सीस लैके कीरतपुर पहुंचे। उतों ती फिर चिट्ठी लिख के सनेहा भेजिया गया कलगीधर पातशाह जो आनंदपुर साहब की धरती के उपर ने। जैता जी कीरतपुर की धरती पर ही विराजमान रहे। सीस उन्होंने संभाल के रखिया। अज 5 दिन हो गए ने, सवेरे तो चलते ने, शाम तक पिंडा तय करते ने, कुछ घड़ियां आराम करके फिर यात्रा में तुर पैंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब की धरती के उपर सनेहा पहुंचता है धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, माता सुंदरी जी, माता गुजर कौर जी और माता नानकी जी, ये सारिया माता जड़ियां ने उतों तुरदियां ने। माता गुजर कौर जी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के घरों, ते माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के मां जो ने, ये आनंदपुर साहब तो पालकी दे विच पहुंचते हैं। ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे इत्थे दर्शन करते हैं। ते देखो मैं कई बारी अर्ज करदा हाँ कि दुनिया के बादशाह जो तख्त के उपर बैठते हैं ना, उन्होंने कीमती तो कीमती नजराने भेटा किए जाते हैं। कोई धन भेटा करता है, कोई दुशाले भेटा करता है, कोई कीमती तो कीमती वस्तु भेटा करता है। पर धन गुरु गोबिंद राय गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तख्त पर सुशोभित होए, ते पहला नजराना, पहली जिहड़ी भेटा है वो अपने पिता गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का सीस जिहड़ा है वो नजराने जी चाहता है। कीरतपुर तो धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का पावन सीस जिहड़ा है आनंदपुर साहब पहुंचता है। शीश महल जो गुरुद्वारा साहब अज उत्थे सुशोभित है, जिथे ये पावन धड़ लिया गया, उत्थे मेवान साहब को गुरुद्वारा सुशोभित है। कदे दर्शन करने का आपको समा मिले। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने भाई जेते नूं गल आके ये बचन कीते सन। आखन के भाई जैता जी रंगरेटा गुरु का बेटा, कि तुसी रंगरेटे हो और गुरु के बेटे हो। क्योंकि जिवें बेटा अपने पिता की संभाल करता है, और इतिहास से ये बचन अंकित ने कि जिथे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के सीस का संस्कार किया गया, जो रस्मां कलगीधर पातशाह निभाइयां सन, नाल नाल जैता जी ने भी, भाई जीवन जी ने भी, क्योंकि वर दिता सी कि रंगरेटा गुरु का बेटा। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह वो शख्सियत ने कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का 2 थावां दे उपर संस्कार होया। एक दिल्ली रकाबगंज साहब लक्की शाह वणजारे का जो स्थान है, दूसरा आनंदपुर साहब की वो पावन धरती के उपर मनुखी अधिकारां लई धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहादत दी, जिसनों कलगीधर पातशाह महाराज आखदे ने कि तिलक जंजू राखा प्रभता का। तिलक और जंजू के नाल सिख धर्म का कोई संबंध नहीं है, पर मनुखी अधिकारां लई गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हिंद की चादर नहीं धर्म की चादर बने ने। क्योंकि जे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शहादत ना देंदे ते अज हिंदुस्तान दे विच हो सकता है कि हिंदू धर्म का ना ना होंदा। बुल्ले शाह ने बड़े प्यारे बचन लिखे ने। वो आखदा है, ना कहूं तब की ना कहूं अब की, मैं बात कहूं तब की, ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। सारियां दी सुन्नत ही होनी सी। जो औरंगजेब ने
अपने धर्म की कट्टरता दे विच ये लिखिया सी कि इस्लाम दा ही झंडा झोले, केवल एको ही धर्म होए, इस तो इलावा कोई दूसरा धर्म ना होए। मैं गल करके समाप्ति करा। इस दिल्ली की वो पावन धरती चांदनी चौक, जिथे गुरु के प्यारिया ने भाई सती दास, भाई मती दास, भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की शहादत हुई। गुरु का प्यारा और सिख भाई बघेल सिंह जदों उन्होंने दिल्ली नूं जित्तिया सी, फिर वो थावा जिहड़ी आ चांदनी चौक, उत्थे फिर ऐलान किया गया। देखो, दो बारी ऐलान होया। एक बारी जदों गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की शहादत होनी सी, ढंडोरा पिटिया गया ते लोकी सैकड़ियां की तादाद विच गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह की शहादत वेले इकट्ठे होए सन। ते दूसरी बारी बघेल सिंह ढंडोरा पिटवाया कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा जिथे शहादत हुई है वो थां आके दसे उन्होंने इनामां दित्तियां जाणगियां। ते एक बुढ़ड़ी माता जिहड़ी है उन्हें आके थां दसी सी। फिर बाबा बघेल सिंह ने ये जो गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है, इत्थे ये धार्मिक स्थान जिहड़ा है वो सुशोभित किया गया, जिथे भाई मती दास, सती दास दयाला जी और धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहादत प्राप्त की है। इतनी सेवा अज प्रवान करनी साध संगत। कल धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का शहीदी दिवस है। गुरु महाराज के पावन जीवन इतिहास पंछी चात कल फिर एक बारी मारन का यतन करांगे। पिछले दिनों तो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के पावन जीवन इतिहास नूं और गुरुदेव पातशाह की बाणी नूं विचार रहे हैं। सतगुरु महाराज की बाणी अगाध बोध है। कुछ शब्द आप संगतां नाल साझे कीते ने। बाणी विचारदियां, इतिहास विचारदियां बेअंत भुल्लां हो गईयां होणीआं। गुरु समर्थ है, संगत बख्शण योग है जी। बख्श देना आखो प्यार नाल। वाहिगुरू जी का खालसा।